Dear students, now let us look at the importance of integrated logistics in achieving overall logistical competency. हमने logistical competency की बात की, हमने उसके अंदर जो important aspects थे उनको discuss किया. Integrated logistics would be about integrating your procurement performance cycle, manufacturing support cycle, and physical distribution performance cycle. आपके पास 3 cycles हैं, which would be starting from your, let's say, inbound to your towards your outbound, and also includes your internal manufacturing cycle as well. Procurement performance life cycle, of course, would be आपका procurement process उससे related है. उस cycle में the performance regarding your procurement would be actually measured, and it would be actually उसको देखा जा रहा है. ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है? स्टार्टिंग फ्रॉम योर सप्लायर्स जो जिनसे आप प्रोक्योर कर रहे हैं, तो प्रोक्योरमेंट लाइफ साइकिल वुड बी लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम देयर. देन यू हैव योर मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट परफॉर्मेंस साइकिल. मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट परफॉर्मेंस साइकिल वुड बी लाइक योर प्रोडक्शन लॉजिस्टिक्स, जो इसके लिए आप कह सकते हैं कि दी अदर नेम वुड बी दी प्रोडक्शन लॉजिस्टिक्स. आपकी प्रोडक्शन में जो लॉजिस्टिकल एक्टिविटी गोइंग ऑन, दैट इज दी प्रोडक्शन लॉजिस्टिक्स और मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट. जो आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उससे रिलेटेड वो सपोर्ट को प्रोवाइड किया जा रहा है. WIP मूव कैसे होगा, रॉ मटेरियल आपके पास किस ऑर्डर का चाहिए, एंड हाउ इट वुड बी मूव्ड, और वो डिपेंड करता है आपके प्रोडक्शन प्लान्स के ऊपर भी कि व्हाट इज दी डिलीवरी डेट, व्हाट इज दी कट ऑफ लेवल, किस टाइम पे आके कौन सी डेडलाइंस है आपके पास, उसको मीट कैसे किया जा सकता है, और उसके लिए किस किस्म की लॉजिस्टिकल एक्टिविटी की जरूरत है. Then third one would be the physical distribution performance cycle. Physical distribution performance cycle, of course, would be when you have that inventory with you. आपके पास वो inventory या finished items आपके पास हैं, and how would you distribute it towards the retail outlets, towards your retailer, or towards how would your distributor actually take it, and how would it be distributed? Of course, अगर आप uncertainty की बात कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा जो uncertainty हो सकती है, uncertain cycle इसके अंदर आपके पास मौजूद है, that is the physical distribution performance cycle. Physical distribution performance cycle, because you don't know how much demand can occur for a specific retail outlet or for a specific retailer, and you are not sure about it. आप 100% sure नहीं हो सकते, forecasted figures के ऊपर चल सकते हैं, और in case of make to order items you are even more uncertain about it. तो सबसे ज्यादा जो आपके पास uncertainty in general है, that is for a physical distribution performance cycle. सबसे ज्यादा आपके पास जो टैक्टिकल डिसीजंस होते हैं, टैक्टिकल मींस की अनसर्टेनिटी कम है, दैट इज रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट परफॉर्मेंस साइकिल, क्योंकि दैट इज इंटरनल टू यू, और सप्लायर से आपके पास सप्लाईज आ चुकी हुई हैं, लेट्स से, और वहां पर अनसर्टेनिटी वुड बी मच लेसर, काफी कम होगी. सो यू नीड टू इंटीग्रेट योर प्रोक्योरमेंट साइकिल विद योर मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट साइकिल और प्रोडक्शन लॉजिस्टिक्स एंड योर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल. दैट मीन्स ये इन तीनों से जो रिलेटेड डिसीजंस हैं वो आपस में इंटीग्रेटेड होंगे, लिंक्ड होंगे. अदरवाइज यू कैन नॉट क्रिएट दी हार्मनी, यू कैन नॉट क्रिएट दी सीमलेस मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट or your raw material or your WIP, whatever form that is, from your procurement till your physical distribution. Firm needs to achieve at least 6 different operational objectives, which are the primary determinants of logistical performance. Logistical performance के लिए आपको 6 objectives, there are 6 operational objectives हैं. Strategic level पे नहीं है, that means short term पे आपके पास इनकी जो working है वो जरूरी है, short term impact है इनका. तो ये 6 आपके पास basically there are primary objectives which an organization would actually, or an enterprise would actually look at, so that कि वो अपनी logistical performance को determine कर सके. These are the rapid response, minimum variance, minimum inventory, movement consolidation, quality attribute, and life cycle support. In general, we will be discussing these 6 objectives in detail. Rapid response, आपके पास obviously consistency is required. Respond करना, how quickly you can respond, but at the same time, organizations or enterprises के लिए जो चीज important है, that is how rapidly and consistently you are responding to it. यानी आपकी rapidness जो है उसके साथ साथ आपकी consistency भी important है. Minimum variance हो, जो दूसरा आपके पास objective है, that means every time, let's say
there is, if there is my procurement life cycle, procurement performance life cycle की अगर मैं बात करूं, तो मिनिमम वेरिएंस होने से क्या मुराद है कि मेरे सप्लायर की जो सप्लाईज मेरे तक आ रही हैं उसमें लेट्स से वन सप्लायर इज प्रोवाइडिंग मी इन 2 to 3 days, सो इसमें जो वेरिएंस है वो कम है. सपोज अगेंस्ट इट कंपेयर टू सम अदर सप्लायर हु इज प्रोवाइडिंग मी विद इन 3 to 6 days, तो 3 to 6 days यानी 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है, उसमें से वेरिएंस वुड बी हायर. तो और एंटरप्राइजेस और ऑर्गेनाइजेशंस वुड लुक फॉर दी सप्लायर्स और द डिस्ट्रीब्यूटर्स एट द सेम टाइम. फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन पे भी आपके पास मिनिमम वेरिएंस का क्राइटेरिया फुलफिल होता है. मिनिमम वेरिएंस के साथ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाए या प्रोक्योर किया जाए, ऐसे सप्लायर्स को प्रेफर किया जाएगा, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स को प्रेफर किया जाएगा जो मिनिमम वेरिएंस रखते हो, जिनकी डिलीवरी डेट्स में या जिनके जो आप तक सप्लायर्स को पहुंचाने तक का जो टाइम है दैट वुड बी विद द मिनिमम वेरिएंस. मिनिमम इन्वेंट्री, ऑफ कोर्स मिनिमम इन्वेंट्री से कभी भी ये रिक्वायर्ड नहीं है कि आपके पास इन्वेंट्री लेवल्स कम हो. मेक टू स्टॉक में यू कैन हैव मोर इन्वेंट्री लेवल्स, बट द ऑब्जेक्टिव वुड बी टू मिनिमाइज द इन्वेंट्री. मूवमेंट कंसोलिडेशन, जहां पर मैं अपनी शिपमेंट्स को कंसोलिडेट कर सकूंगा, आई विल गो फॉर इट. इससे आपकी LTL, लेस देन ट्रक लोड का फिनोमेना या लेस देन कंटेनर लोड का जो फिनोमेना है वो कम हो जाता है. दैट मीन्स इफ आई हैव अ कंटेनर दैट कैन कंटेन 20,000 आइटम्स और मैं एक शिपमेंट उसमें भेज रहा हूं जो कि सिर्फ 5,000 आइटम्स की है, तो मेरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ रही है. इज इट पॉसिबल टू कंसोलिडेट इट विद सम अदर ऑर्डर, एंड इफ द शिपमेंट डेट्स कैन कोइंसाइड, आई कैन एक्चुअली गो फॉर इट. क्वालिटी एट्रीब्यूट्स भी हैं और लाइफ साइकिल सपोर्ट भी है. एक प्रोडक्ट की जो लाइफ साइकिल है कि वो एज कितनी जल्दी करता है या मार्केट में उसकी सैचुरेशन पॉइंट किस टाइम पे मौजूद है, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स हैं आपकी लॉजिस्टिक्स को इंटीग्रेट करने में. बट ऑन दी होल you would be looking at, in general, the procurement life cycle, your manufacturing support cycle, as well as your physical distribution cycle, and the decisions which are actually related to these three cycles, and how should these decisions would be integrated so that the seamless environment can be created for achieving the logistical competency. Thank you.